Hello everyone, here we are going to solve a question from Pathfinder from magnetic effects of current. So you should pause the video over here and definitely go for it. Try the question on your own before you move on to the solution. तो हमें given है that there is a cube and a current I is flowing along edges of one face of the cube as shown, right? And due to this current carrying loop, magnetic field at the center of the cube is B naught J cap. X, Y and Z directions are given to us. फिर हमें बोला है कि in the same cube if we have a very different path along which now the same current is flowing, what would be the magnetic field at the center of the second cube, right? So यहाँ पे अगर हम ऐसे सोचेंगे कि if I try to find the magnetic field due to each edge of the cube, then it will be a very long method, right? तो क्योंकि यहाँ पे 4 edges हैं, उन सब की वजह से individually हमें magnetic field लिखना पड़ेगा. Of course we can see that by symmetry center पे magnetic field due to each side will be equal, the magnitude will be equal, but directions थोड़ी complicated होंगी, तो वो थोड़ा लिखना will be मतलब वो possible है और मतलब हो जाएगा, but it will be long. और यहाँ पे तो 6 edges हैं, so और भी ज़्यादा लंबा होगा. तो ये लग रहा है कि क्योंकि MCQ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ ट्रिक हियर, तो वो ट्रिक हमें ढूंढनी है, राइट? सो लेट अस लुक एट हाउ वी कैन डू दैट. तो फर्स्ट लुक लेट अस सी दैट कि अगर एक ये स्क्वायर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट? तो और मैं उसकी एक सिमेट्री एक्सिस लेता हूँ, राइट? सो व्हाट इज दिस सिमेट्री एक्सिस? इट इज़ अ लाइन अबाउट विच दिस लूप हैज सम काइंड ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है कि इफ़ आई रोटेट द लूप अबाउट दिस एक्सिस by a certain angle, I will get the same shape. So you can see that if you rotate this square about an axis which is perpendicular to the plane of the loop and passes through its center, if you rotate it by 90 degrees, you get back the same shape, right? So there is some kind of symmetry, right? So if we have a symmetry axis, if we have a symmetrical loop and we have a symmetry axis, then field at a point on the symmetry axis of any of that loop will be in the axial direction, right? So this is similar to the magnetic field due to a circular loop on its axis. Circular loop में भी symmetry होती है, right? Of course circular loop में थोड़ी ज़्यादा symmetry होती है. It is very very symmetrical कि if you rotate it by any angle about that axis, you get the same field. But even here there is enough symmetry to ensure that एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो हम कैसे करेंगे कि इंडिविजुअल साइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके, 4 टर्म्स आएंगे और चारों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, राइट? तो इस केस में ऐसा होगा कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कॉम्पोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट? They will produce a net zero and only the axial components will survive. तो इसलिए in the end the net magnetic field will be in the axial direction. तो इसको बहुत सिंपली भी समझ सकते हैं क्योंकि इतनी सिमेट्री है, तो it will not make sense for the magnetic, अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में कोई फील्ड होगा भी तो किस डायरेक्शन में होगा? जिस भी डायरेक्शन में होगा तो फिर किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं? बिकॉज because there is so much symmetry, right? तो आई थिंक यू शुड रियली अंडरस्टैंड दिस इन अ क्रिस्टल क्लियर वे कि ऐसा क्यों है कि जैसे सर्कुलर लूप में फील्ड एक्सियल होता है, ये तो सबको पता है कि हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया और वो फॉर्मूला सबको याद भी होना चाहिए. बट कोई भी सिमेट्रिकल लूप है, जैसे ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसके सेंट्रॉइड के थ्रू मैंने उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी, दैट इज अ सिमेट्री एक्सिस फॉर द ट्राइंगल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन दैट एक्सिस विल बी अलॉन्ग द एक्सिस, राइट? ऐसे हेक्सागन के लिए भी सोच सकते हैं, पेंटागन के लिए भी सोच सकते हैं एंड सो ऑन, राइट? सो एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो डिसाइड कि कौन सी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. कि एक्सियल डायरेक्शन तो पता चल गया, बट उसमें भी 2 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में. सो यू शुड बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद इट.
तो ये एक ऐसा रूल है राइट हैंड रूल कि इसको यूज़ करते हुए अगर आपने कभी गलती कर दी तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज मतलब वो अगर आप उसको 100 टाइम्स यूज़ कर रहे हो और उसमें 2-3 बार भी गलती कर रहे हो तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. मतलब यू शुड हैव कंप्लीट कमांड ओवर हाउ टू यूज़ द राइट हैंड रूल. तो यहाँ पे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं. अपने सर्कुलर लूप के लिए इसको पढ़ा होगा कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट. सो लेट मी शो यू हियर कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं इस डायरेक्शन में, तो द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल टेल अस द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो आवर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स राइट, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस विल बी टुवर्ड्स द राइट. तो ये एक्सिस पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. ऑफ द एक्सिस वाले जो पॉइंट्स होंगे उन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वहाँ पे एक्सिस के अलावा दूसरा कंपोनेंट भी होगा. बट अभी एक्सिस की बात कर रहे हैं. ये जो सिमेट्री एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे हर जगह, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ होगा. तो यहाँ पे राइट की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी राइट की तरफ होगा, सब सारे पॉइंट्स पे. तो पीछे वाले पॉइंट्स पे भी राइट की तरफ होगा, राइट. तो दिस इज हाउ टू यूज द राइट हैंड रूल टू जज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सिमेट्रिकल लूप. तो यहाँ पे स्क्वायर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए आपने कर रखा होगा ये. सिमिलर टू दैट यहाँ पे हम स्क्वायर लूप के लिए कर सकते हैं, राइट. सो नाउ वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जे कैप डायरेक्शन में क्यों था. मतलब कंफर्म भी हो गया क्योंकि जो सेंटर ऑफ द क्यूब है वो भी इस स्क्वायर लूप के सिमेट्रिक एक्सिस पे ही लाई करता है, राइट. कि अगर आप इस स्क्वायर लूप के सेंटर के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्यूब का सेंटर भी उसी पे लाई करेगा, राइट. तो उस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द राइट. तो अब ये सेकंड वाले लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालेंगे, राइट. तो ये सोचते हैं. तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ वी कंसिडर दिस कॉम्प्लिकेटेड लूप, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लूप है कि करंट यहाँ जा रहा है पहले, फिर राइट जा रहा है, फिर नीचे, एंड सो ऑन, कैन बी कंसिडर्ड द सुपर पोजिशन ऑफ 3 सच स्क्वायर लूप्स, राइट. तो ये कैसे हुआ कि एक तो ये ए फेस है, मतलब तो मैंने ABC 3 फेसेस को लिया कि ये जो लेफ्ट वाला फेस है क्यूब का, आगे वाला फेस है जो उसको C बोल रहा हूँ, और जो नीचे वाला फेस है उसको B बोल रहा हूँ. तो दीज आर द 3 फेसेस. और अगर मैं इन 3 फेसेस के करस्पॉन्डिंग 3 स्क्वायर लूप्स लेता हूँ विद दीज डायरेक्शंस ऑफ करंट, ए में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बी में ऐसे फ्लो कर रहा है, एंड सी में क्लॉकवाइज राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट. और मैं तीनों का सुपर पोजिशन ले लेता हूँ कि तीनों साइमल्टेनियसली मैंने कंसिडर किए, तीनों को अटैच कर दिया, एक तरीके से ज्वाइन कर दिया, ऐसे सोच सकते हो. तो क्या होगा कि जो भी साइड वो शेयर करेंगे वहाँ पे जो करंट है वो एड अप हो जाएगा, राइट. कि जैसे अगर ए जो लूप है उसका ये जो लेफ्ट वाला साइड है और सी का जो ये लेफ्ट वाला साइड है, इन दोनों का करंट एड अप हो जाएगा. और करंट क्योंकि ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, सब में आई करंट फ्लो कर रहा है. सो देयर करंट्स विल म्यूचुअली डिस्ट्रक्ट एंड एड अप टू नथिंग. तो दे विल प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट. तो इसका मतलब इस साइड से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, राइट. फिर बॉटम वाले लूप का जो लेफ्ट साइड है और इसका जो बॉटम साइड है उसमें भी ऐसा होगा कि करंट्स, बिकॉज वो एज शेयर कर रहे हैं. सो ए एंड बी आर शेयरिंग एन एज. तो जो भी एज जो वो शेयर करते हैं उसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस, टोटल करंट उनके एडिशन से आएगा, राइट. तो नेट करंट इज जीरो अगेन. तो हमें मिल गया कि यहाँ इस वाले ब्रांच में भी करंट जीरो होना चाहिए, जो कि है. सो देयर इज नो करंट ओवर हियर, राइट. तो बस ऐसे सोचो कि अगर हम सेंटर ऑफ द क्यूब पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इन तीनों लूप की वजह से और उसको वेक्टर सम कर देते हैं, सो वी विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिजल्टेंट लूप. तो ये जो लूप है, फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ दीज 3 लूप्स, राइट. कि मतलब इनमें कुछ साइड्स, कुछ एजेस जो शेयर हो रही है उनमें करंट्स ऑपोजिट हैं तो वो कैंसिल होकर जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी कुछ जो बच रहा है
वो जो जो भी बच रहा है दैट दे प्रोड्यूस द एजेस विच रिमेन प्रोड्यूस द लूप दैट वी वांट, कि ये करंट जा रहा है इधर और नीचे जाके इधर जाके ऊपर, राइट. So now all we have to do is find the magnetic field at the center of the cube due to these individual square loops A, B and C and just add them and we will get the field due to this loop that we wanted. तो A की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे कैप डायरेक्शन में होगा. सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगेन कि जो हमने अभी जज किया था कि एक्सिस ऑफ द स्क्वायर लूप पे अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस and it will be the direction can be determined by the right hand rule. Or moreover the center is at the same distance from the center of these square loops. तो ये भी एक point है यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा कि of course the direction of the magnetic field can be determined as we just discussed above, but what about the magnitude of the magnetic field? तो magnitude of the magnetic field किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा सेंटर से, कि अगर स्क्वायर लूप का कोई जो सेंटर होगा, सो लेट मी मार्क इट ओवर हियर. सो स्क्वायर लूप का यहाँ पे सेंटर है, इस स्क्वायर लूप का यहाँ पे सेंटर है, बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, कि स्क्वायर लूप का जो सेंटर होगा तो वहाँ से कितना डिस्टेंस है. हम एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली हम क्यूब के सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं. तो इसकी जो सिमेट्री एक्सिस होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इसकी जो सिमेट्री एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, इसकी जो सिमेट्री एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, और जो सेंटर ऑफ द क्यूब है वो इन तीनों सिमेट्री एक्सिस पे ही लाई करेगा, मतलब राइट. द सेंटर ऑफ द क्यूब विल लाई ऑन ईच ऑफ दी सिमेट्री एक्सिस एंड मोर ओवर द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री सेंटर्स ऑफ ए, बी एंड सी, राइट. सो वी हैव टू नोट दिस केयरफुली. तो अगर तीनों से सेंटर ऑफ द क्यूब तीनों के सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम एक्सिस के अलोंग कितनी दूर जा चुके हैं सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप से, ऑफ कोर्स, राइट. कि अगर आप सेम डिस्टेंस पे हो दोनों तरफ, मतलब जैसे यहाँ पे बी नॉट जे कैप है, अगर मैं सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लूँ यहाँ पे विच इज़ एट द सेम डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस a/2 है, क्योंकि अगर क्यूब का साइड लेंथ a है तो ये डिस्टेंस a/2 है, तो मान लेते हैं दूसरी तरफ जो पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस भी a/2 होगा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द राइट हैंड डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी p0. कोई और पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कोई पॉइंट, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा. सो मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप. सो नाउ वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड तीनों का b0 ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द क्यूब इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ ए, बी एंड सी. तो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाई कैप डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द राइट, जजिंग बाय द राइट हैंड रूल. बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में होगा, कि फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब विल पॉइंट अपवर्ड्स फॉर बी, right. And for C the magnetic field will at the center will point in the plus I cap direction. तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, so this will be I cap, right. तो तीनों का सम करके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाता है, विच इज दिस P0 I plus J plus K. So it is a superposition of three loops and this is the trick we have used, and you can use this trick in many other problems, right. कि दो पर्टिकुलर लूप्स को हम अगर ऐड कर दें तो उससे हमें कोई एक रिजल्टिंग लूप मिल जाता है कई बार, राइट. सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट रिजल्टेंट लूप बाय कंसिडरिंग इट एज द सुपरपोजिशन ऑफ 2 or 3 or 4 मोर लूप्स. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन इंडिविजुअल लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना बहुत इजी है हमारे लिए, तो इसीलिए इनको ऐसे इस रिजल्टिंग लूप को इन तीनों में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि फिर इनकी वजह से इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड लिखना इजी है
तीनों को ऐड करके फिर फाइनली इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. So I hope you understood the solution, and even if you did not, you can go through it again, and you should practice it again after a few days, trying to get the concepts from your own mind. तो तभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी and तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी. So I hope you enjoyed the video and thanks for watching.